Assalamu alaikum to all. I hope that you all are doing well and रमज़ानुल मुबारक to all. रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है और तीसरा अशरा निजात का होता है। फ़र्स्ट अशरा कंप्लीट हो गया है। सेकंड अशरा है रमज़ान का, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी है, अल्लाह की दुआ मांगनी है और आजकल जो हालात हैं उस हवाले से आप अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला इस महीने हमारी कोई ऐसी बात रद्द नहीं करता। जो कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, आप इसकी दुआ करें कि ये जल्द अज़ जल्द हमारे मुल्क से चली जाए। And taking care of your health, because in these days it is very important to stay healthy, stay active, stay safe, and most importantly stay at home. As you all know that Alhamdulillah we are starting our online session again. So I welcome to all, and as you all know, to critical situation of COVID-19. We are not taking physical classes, so please ensure that to avail the facility of online classes and try your best. So students, now we move to our revision work of English A of class 5. This is your revision work. Question number 1 is, why do you think the sea is being compared to a hungry dog? Answer: because of the way it looks, sounds, and sleep, it is very hungry like a dog. The poet sees a similarity between the sea and a dog. Question number 2 is, what that not? Answer: the rumbling, tumbling stones in the beach get gnawed. Third question is, why did Dorothy and her friends want to go Emerald City? Answer: Dorothy and her friends were traveling to the Emerald City to find the brain of Scarecrow and the heart of Tin Woodman. Question number 4 is, can you explain why the winged monkeys agreed to the help and others immediately? In your own words. Answer: the winged monkey agreed to help the Dorothy and other immediately because they had a vow to fulfill 3 wishes of the wearer of the golden cap. 5 question is, which hand moves faster, the hour hand or the minute hand?
The minute hand moves faster than the hour hand. Question number 6. Why do you think the hour hand calls the minute's hand's speed a disgrace? Answer. The minute hand's speed is a disgrace because it moves faster than the hour hand. Question number 7 is, do you think the title, The Speed Track, appropriate for the poem? Answer. Yes. The title is appropriate due to the circular track. Now question number 8 is, what made Natasha's heart broken? Answer. She was 8-year-old. She loved her mother dearly, and her death broken Natasha's heart. Question number 9 is, what blessing did Natasha's make for her child? Answer. Her mother had made a doll for her child. Question number 10. What is the message of this story? Answer. The story conveys the message that success comes after failure. Question number 11 is, what do you think is meant by the phrase out of blue? Answer. It means all of sudden. Question number 12 is, why do you think Jerry did not bring back the bird he had shot? Answer. Jerry did not bring back the bird he had shot as his mother would be very angry if she heard about it. Question number 13 is, what did Jerry begin to fear he had done? Answer. Jerry began to fear that he may have killed Wonder and not just any dove. So student, ये आपके रिवीजन के क्वेश्चन आंसर थे। अब रिवीजन वर्क में जो आपको करवाई थी वो नेक्स्ट थी आपकी समरी।
ये चैप्टर द स्पीड ट्रैक की समरी है। टू डिफरेंट हैंड्स ऑन द पॉलिश डायल हैव इम्पोर्टेंस equally. It doesn't matter if minute hand moves faster than the hour hand. Both are performing their duties to show the time. This is the summary of the chapter The Speed Track. Now we move to next exercise. स्टूडेंट्स, ये होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स आपको पता है क्या होता है? जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होती है। होमोफोन्स में जो हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं वर्ड, वो सेम होते हैं प्रोनाउंस करने में, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे देखें, नंबर 1 है मेन। मेन मीन जानवर की गर्दन के बाल, और इसका जो इसके जो साथ में है मेन, इसकी मीनिंग है ज़रूरी, बड़ा या अहम। देखें, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं MANE मेन, MAIN मेन, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, तो ये होमोफोन्स कहलाते हैं। सेकंड है टेल। टेल मीन किस्सा या कहानी, और TAIL टेल मीन दुम। थर्ड है हॉर्स। हॉर्स मीन घोड़ा, एंड हॉर्स मीन भराई या भारी। रेंस, रेन। हेयर, हेयर। रोड, रोड। वो। ने और ने। ये आपके होमोफोन्स हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वर्ड्स टू नो, जो रिवीजन वर्क में हुआ था आपका वर्ड्स टू नो। शैगी, हैविंग लॉन्ग थिक एंड मेसी हेयर। Reedy, high and thin in tone. Clashing, crashing together loudly. Velvet, soft fabric. Sorceress, a witch who uses magic. Dial, the round face of a clock. Disgrace, shame. नेक्स्ट है ब्लेसिंग, गुड विशेस फॉर प्रोटेक्शन एंड हेल्प। हार्ट ब्रोकन, फीलिंग ग्रेटली अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड। वैलेट, अ मेल सर्वेंट। स्लीक, स्मूथ एंड ग्लोसी। फास्ट, firmly fixed or attached. Sling, a loop of leather attached to a catapult. Suspended, as if hanging or floating in space. Loft, a box like a structure for pigeons. नेक्स्ट है आपकी डिफाइन द फॉलोइंग भी थी रिवीजन वर्क में आपकी। नंबर 1 है 24 आवर क्लॉक। नंबर 1 है 24 आवर क्लॉक। व्हेन द क्लॉक कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ 24 आवर इज कॉल्ड 24 आवर क्लॉक। सेकेंड है आपकी डिजिटल। डिजिटल डीलिंग विथ नंबर्स और डिजिट्स। थर्ड है आपकी स्टॉप वॉच। थर्ड है स्टॉप वॉच।
watch which can be started and stopped at will for timing races. फोर्थ है kph, किलोमीटर पर आवर, यूनिट ऑफ स्पीड। फिफ्थ है आपकी pm, पोस्ट मेरिडियम, आफ्टरनून। सिक्स है am, एंटी मेरिडियम, बिफोर नून। ये जो pm है ये सुबह 12 से रात 12 तक आपका जो टाइम चल रहा होता है ये pm कहलाता है, और रात 12 से सुबह 12 बजे तक जो टाइम होता है वो एंटी मेरिडियम मीन्स am कहलाता है। बिफोर नून मतलब जो 12 बजे, दोपहर के 12 बजते हैं उससे पहले जो टाइम होता है जब आप स्कूल आते हैं 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो टाइम चल रहा होता है जब आपके 12 बजे आप स्कूल में होते हैं, जब 12:01 होता है तो आपका नून लग जाता है, और 12 बजे तक आपका सुबह 12 बजे तक am कहलाता है। रात 12 से सुबह 12 तक am, सुबह 12 से रात 12 तक pm कहलाता है। sundial, an instrument to show the time of day by day the shadow cast by the sun. sundial, an instrument to show the time of day by day the shadow cast by the sun. Reference to contest: read lines from the poem and then answer the questions. Number 1, the rose on the beach all day. 1 का A पार्ट है, what is really being described here? The waves of the sea are being described here. B, who rolls on the beach? The waves roll on the beach. Second, why does he roll on the beach? What is he doing? The waves come and break on the shore and slowly recede. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का पार्ट 2 है द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स। ए, what really makes the stones move? The waves of the sea make the stones move. B, what are the stones compared to? The stones are compared to bone. What is being done to the stone in the comparison? The stones are being known like a dog would do to a bone. सो स्टूडेंट्स ये रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट थे। इसके अलावा कुछ वर्ड सेंटेंसेस भी हैं जो आपकी कॉपी में राइट हुए हैं। सेंटेंसेस बनाने हैं आपने रिवीजन में, और ऑब्जेक्टिव पेपर जो दिया था आपने वो अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपने उस पर टिक मार्क करने हैं। उसके बाद जब आप वो पेपर कंप्लीट कर लेंगे देन आपने ख़ुद चेक करना है उसे आपने कि आप कितने कैपेबल हैं उस पेपर चेक करने के लिए। ऑब्जेक्टिव पेपर्स आपने ख़ुद चेक करने हैं। आपकी कैपेबिलिटी देखी जा रही है कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर्स को किस तरह चेक कर सकते हैं, कितने कैपेबल हैं। एंड स्टूडेंट्स, एज़ यू नो हम रमज़ान स्टार्ट हैं,
रमज़ान में हमारे स्कूल में हेल्प बैंक अरेंज होता है और हर साल बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं हेल्प बैंक में। आप जो भी आप दे सकते हैं हेल्प बैंक में नीडी पीपल के लिए, वो आप स्कूल में हमारे हेल्प बैंक जो लगा हुआ है उधर दे सकते हैं। हर साल काफ़ी सारे बच्चे हेल्प बैंक में पार्टिसिपेट करते हैं। मिल्क पैक हो गया, कुछ बच्चे मिल्क पैक दे देते हैं, मैच बॉक्स हो गया और पल्सेस हो गई, राइस हो गए। काफ़ी सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल भी आप लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि रमज़ान में हम जब कोई नेकी करते हैं तो उसका जो हमें सवाब मिलता है वो 70 गुना ज़्यादा मिलता है हर चीज़ का। और ये नीडी पीपल के लिए है, और ताकि वो रमज़ान अच्छे से गुजार सकें, जिनके घर राशन नहीं है या खाने के लिए कुछ नहीं है, ये उन लोगों के लिए अरेंज किया जाता है, उन लोगों को पहुंचाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। हेल्प बैंक में हमारे स्कूल में हेल्प बैंक है, लगा हुआ है, अरेंज किया गया है इस साल भी, तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द रिवीजन वर्क्स, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।